like we want to create a group because I want to perform some operations on that. मुझे कुछ उसके ऊपर operations perform करने थे, so that I want to just create a group. Is it okay? So how to create the group? So we have two different options. Either we can use an empty square bracket or list function to create a list object, and it supports the heterogeneous type of data. It's a mutable. Mutable means we can just change the data, okay, and we can update some data, we can insert some data and blah blah, and it supports the positive and negative index. But now the question is, sir, मुझे इनके ऊपर कुछ operations perform करने हैं, so will you please list out the function using that I can perform the operation? Because मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं लिस्ट को, पाइथन के लिस्ट को सी लैंग्वेज के एरे के साथ कंपेयर करूँ, so what is the meaning of C language array? Means what is the meaning of array in C language? Sir, array is just used to represent a bulk of data, group of data as a single entity. But if you want to perform any operation on an array, if you want to perform any operation, like I want to sort the array, मुझे कोई element search करना है, so if you want to perform any operation on an array, so what you have to do, guys? What you have to do? आपको खुद से कोड लिखना पड़ेगा, but that's not that thing. Sorry, in Python we have a predefined code. In short, we have predefined functions. Okay, जो हम लोग को different operations करने के लिए help कर रहे हैं. ठीक है, so guys, अगर मुझे list of functions चाहिए जो in short group of function जो list class के अंदर available है, so I will simply write down dir in the bracket lst. So what is that lst? That's my variable name. And what is the task of this dir? It will return a group of functions. It will return a group of function of argument of the past object. जो भी आपने argument में एक object pass किया, उसके जितने भी functions है वो list out कर देगा. Okay, but वो अपने को return कर रहा है, but मुझे उसको print करना था. So what I did, print in the bracket dir in the bracket lst. Right now lst means it. So is it clear, guys? ये loop आपको समझ में आया? ये loop सबको clear है? Okay. Now what is my requirement? मुझे underscore वाले function नहीं चाहिए. So what I will do, मैं simple चीज लिख रहा हूँ. If underscore not in I. After that I want to just print that. मुझे ऐसे function चाहिए जिसके अंदर underscore ना हो. मुझे ऐसे फंक्शन चाहिए जिसके अंदर अंडरस्कोर ना हो. ओके, लेट आई जस्ट रन दिस. सो ओनली लिस्ट स्पेसिफिक फंक्शंस आर देयर राइट नाउ ऑन माय स्क्रीन. ओनली लिस्ट स्पेसिफिक फंक्शंस आर देयर राइट नाउ. ओके, सो गाइस, कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है? वी हैव अपेंड, वी हैव क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड्स एंड ब्ला ब्ला. इज इट क्लियर? सो एक बार मैं इसको लिस्ट आउट कर देता हूँ यहाँ पे. सो अगर आप अपने प्रीडिफाइंड लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करना चाहते हो, अगर आप अपने लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करना चाहते हो, देन फर्स्ट फंक्शन इज नथिंग बट अपेंड. फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट अपेंड. अनदर मेथड इज नथिंग बट इंसर्ट. आप देख सकते हो मेरे पास दो फंक्शन अवेलेबल है. द फर्स्ट वन इज अपेंड एंड अनदर वन इज नथिंग बट इंसर्ट. ओके, नाउ इफ यू वांट टू रिमूव सम एलिमेंट, then we have a first method, that's a clear, which is used to remove all these elements, जो सब के सब डेटा डिलीट कर सकता है. another one is nothing but a pop and last one is nothing but a remove. तो हमारे पास डिलीट करने के लिए तीन फंक्शन है. Now what is the difference between pop and remove? So guys, हम लोग को पता है कि लिस्ट इंडेक्स वैल्यू सपोर्ट करता है. So आपको इंडेक्स बेस कोई डेटा डिलीट करना है. लाइक अगर मान लो मेरे पास लिस्ट होता 1 to 100 का एंड मुझे 52 नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ. सो अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफिक कोई वैल्यू डिलीट करना है, देन आई विल जस्ट यूज द पॉप फंक्शन. एंड वैल्यू रिलेटेड मुझे कोई डेटा डिलीट करना है, देन आई विल जस्ट कॉल अ रिमूव मेथड. ओके, थोड़ी देर के बाद इन दोनों को देखते हैं. एंड अगर आपको साइज चेक करना है, अदरवाइज लाइक आपको कोई एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, देन वी हैव अ काउंट फंक्शन. फ्रीक्वेंसी काउंट करने का मतलब कोई एक एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है, कोई एक एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है. सो दैट्स जस्ट यूज टू use the count function. Count function is used to just return the frequency of that particular thing. After that, if you want to reverse the list or you want to just short the list, so this much of functions are used. Okay, is it clear? And one more function is there, that's nothing but an index. अगर आप कोई element का index find out करना चाहते हैं,
ओके कोई एलिमेंट का आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड लास्ट फंक्शन इज नथिंग बट ए कॉपी। सो लिस्ट का अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, इज इट क्लियर? सो ये कुछ फंक्शन है मेरे पास जो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट स्पेसिफिक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट स्पेसिफिक है। ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, मैं अभी फंक्शन के ऊपर नहीं जा रहा बिकॉज मुझे एक और टॉपिक कवर करना, बिकॉज दिस वन इज क्वाइट ईजी। कौन सा टॉपिक करना है मुझे एक्चुअली गाइस? स्लाइसिंग कवर करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कुछ लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। एंड माय रिक्वायरमेंट इज, मेरे पास एक्चुअली 5 एलिमेंट है 10 to 50। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मैं एक टॉपिक यहाँ पे पहले टाइटल दे देता हूँ, मुझे स्लाइसिंग चाहिए। स्लाइसिंग इन द सेंस व्हाट, मुझे पूरा लिस्ट प्रिंट करना है। सो आप क्या बोलोगे? सर प्लीज राइट डाउन LST, प्लीज प्रिंट LST, तो टोटल लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके सो मैं अभी बताता हूँ स्लाइसिंग का मतलब क्या है। सो लेट मी रन दिस। तो पूरा लिस्ट प्रिंट हो गया एज वी नो। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? आई वांट फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, आई वांट, मुझे 10, 20 और 30 चाहिए। मुझे सिर्फ पहले 3 एलिमेंट प्रिंट करने, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रिंट LST एंड एक्चुअली अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स वैल्यू 3 लिखनी पड़ेगी, इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 1 एंड इंडेक्स वैल्यू 2। सो गाइस एक साथ 3 इंडेक्स वैल्यू आप पास नहीं कर सकते, बट अगर आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए, अगर आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स चाहिए तो एटलीस्ट आप लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 0 to 3। व्हाट अबाउट दिस कॉलम? सर ये सिंटेक्स को बोला जाता है स्लाइसिंग, इस सिंटेक्स को बोला जाता है स्लाइसिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग? सो दिस इज नथिंग बट ए स्टार्टिंग एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट ए स्टार्टिंग एलिमेंट एंड अप टू दिस वो एलिमेंट को फैच करेगा। एंड एक्चुअली अगर आपको देखना हो तो कितने एलिमेंट्स लेगा, तो दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, एंडिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू का डिफरेंस निकालिए, कितना होगा? 3 minus 0, इट इज 3। ओके एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू? स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या कंसीडर करेगा ये? 0। तो 0 से नेक्स्ट 2 एलिमेंट, क्योंकि टोटल 3 एलिमेंट है ना, तो 0, 1 एंड 2 ये प्रिंट करेगा। सो लेट मी चेक। सो हियर वी हैव 10, 20, 30। ओके एंड एज वी नो, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू जस्ट डिस्कस। अब इसमें मैं ऐसा काम कर लेता हूँ, तो लाइक लेट आई जस्ट राइट डाउन 0 to 5 एंड colon 2। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस colon 2? सो गाइज ये एक्चुअली गैप डिनोट करने के लिए ये हम लोग पाइथन को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मुझे अल्टरनेटिव एलिमेंट्स चाहिए, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। व्हाट इज द एंडिंग वैल्यू? सर एंडिंग वैल्यू इज नथिंग बट ए 5। सो 5 minus 0 मतलब कितने एलिमेंट चाहिए? मुझे 5 एलिमेंट चाहिए। कहाँ से स्टार्ट करना था? 0 से। आफ्टर दैट आपने कॉलन के बाद जो लिखा, व्हाट इज दैट? सर इट इज नथिंग बट ए गैप। सो कितने गैप का जंप करना है? 0 के बाद 2 का जंप, 2 के बाद 2 का जंप, ओके इसके बाद 2 का जंप, बट 6 आउट ऑफ रेंज है, मुझे लेस देन 5 तक चलना था, लेस देन 5 तक चलना था। तो यहाँ पे अब मुझे कितने एलिमेंट्स प्रिंट होंगे मेरे? इट विल जस्ट प्रिंट 3 एलिमेंट्स, बट कौन कौन से? 0, 2 एंड 4, 0, 2 एंड 4। नाउ लेट मी रन। सो हियर वी हैव 0th पोजीशन पे कौन है? 0th पोजीशन पे 10। अब मुझे डायरेक्टली सेकंड पोजीशन पे जाना है, नॉट ऑन ए 1, मुझे 2 इंडेक्स पे जाना है, मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे जाना है, सो दैट्स 30। नाउ मुझे इंडेक्स नंबर 4 पे जाना है, सो दैट्स नथिंग बट ए 50। इज इट क्लियर? नाउ इफ समवन सेज सर मुझे डेटा रिवर्स में प्रिंट करना है, मुझे डेटा रिवर्स में प्रिंट करना है, देन गाइस सिंपल थिंग इज देयर, मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ LST। ओके लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। रिवर्स से पहले एक और चीज कर देते हैं। सर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखूँ तो, या सिर्फ मैंने 4 लिखा तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? या बट ऑब्वियस इट जस्ट डिस्प्ले अ 50, इट जस्ट डिस्प्ले अ 50। सो दैट्स द इंडेक्स वैल्यू सिंटेक्स। बट अगर इसकी जगह पे मैंने colon 4 लिखा तो, ओह सर इट्स ए स्लाइसिंग सिंटेक्स, बट आपने स्टार्टिंग वैल्यू मिस कर दी। सो गाइज स्लाइसिंग के अंदर स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, सो दैट विल बी बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज 0, दैट विल बी बाय डिफॉल्ट कंसिडर इज 0। सो इसका मतलब 0 colon 4 है, इसका मतलब 0 colon 4 है। दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट हुआ? 0 से लेके कहाँ तक प्रिंट होगा? अप टू 40, सॉरी अप टू 4, मतलब 4 मतलब कितने एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं मुझे कितने एलिमेंट कंसीडर करने हैं? 4 minus 0, दैट मीन्स 4। तो 10, 20, 30 एंड 40, सो अप टू 40 इट विल डिस्प्ले। लेट मी चेक। ओह दैट्स इट। सिर्फ लास्ट लाइन चेक करिए गाइस। सो इट जस्ट डिस्प्ले 10, 20, 30 एंड 40। आई होप यहाँ तक स्लाइसिंग क्लियर हुआ है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं गाइस, कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं। नाउ अनदर थिंग इज सर अगर मैं एंडिंग वैल्यू मिस कर दूं तो, मतलब मैं स्टार्टिंग वैल्यू लिख रहा हूं बट आई डो नॉट वांट टू प्रोवाइड एन एंडिंग वैल्यू। सो गाइस एंडिंग वैल्यू
will be considered as a length of the list. So how many elements you have in a list? आपके पास list के अंदर कितने elements? Sir, 5. 5. So this one will be considered as 2 to 5. So what is the expected output? What is the expected output? 5 minus 2. So it will display 3 elements, but starting index value is 2. 2 पे कौन है? 2 पे कौन है? Sir, 30. So 30 से लेके 50 print होगा. That is our expected output. Let me run. Oh yes, we have 30, 40 and 50. 30, 40 and 50. Is it clear? So now a next concept is, sir, दोनों चीज भूल गए तो, अगर मैं starting value भी भूल जाऊँ और ending value भी भूल जाऊँ तो, so guys, starting value is by default 0. What about the ending? What about the ending? Sir, it is by default length of the list. So 0 से लेके 5 तक print होगा. So how many elements it will display? 0 to 5. That means the whole list it will display. Whole list it will display. Is it clear? But now if someone say, sir, can I do one thing? मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूँ तो, मैं यहाँ पे colon के बाद एक gap provide करूँ तो, so now what's the meaning of that? So did you provide the starting value? No sir. आपने ending value provide किया? No sir. Then starting value will be considered as 0, ending value will be considered as 5, means a length of list, and increment is there, and that was actually specified. So increment क्या consider होगा? 2. Okay. So किस तरीके से data display होगा? पहले 0 वाला element, then 2, then 4. Is it clear? So 0 to 4, that means 10, 30 and 50. 10, 30 and 50. So here we have. I hope ये सही से समझ में आया guys. कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. तो अगर ये समझ में आया तो अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं ना. अगर ये समझ में आया तो कुछ इसके साथ एक्सपेरिमेंट इन शॉर्ट इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं. बट गाइज एक और चीज देख लेते हैं. मुझे एक्चुअली नेगेटिव स्लाइसिंग देखना है. ये मैंने पॉजिटिव स्लाइसिंग देखा, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मुझे रिवर्स में चलना है. सो पहली चीज़ जैसे आपको मैंने बताया, ओके, जैसे हम लोग को पता था कि इस भाई साहब का इंडेक्स वैल्यू एक्चुअली पॉजिटिव में देखे तो 4 और नेगेटिव में देखे तो -1. 50 इज ऑन ए -1 पोजिशन. ओके, रिवर्स में देखो तो. सो कैन आई राइट डाउन लाइक दैट, LST ऑफ -1 to -3 या -4. So can you please tell me what is the expected output? Yes guys, I am waiting. Can you please tell me what is the expected output? Let me check कि आपको कितना समझ में आया. Yes guys. Yes, जिसको भी समझ में आया वो रिप्लाई करे थोड़ा जल्दी. वही समझ में तो आ रहा है ना, ऐसा नहीं है ना बिल्कुल समझ में नहीं आया. हाँ जी, मिलिंद, चार्मी, रिया, रिचा, हेतवी. What is the expected output guys? 50, yes. 50, 40 and 30. Yes, very good. Anyone else? Guys be careful, this is Python. जितना easy है उतना आपके साथ मजाक करेगा. यहाँ पे output empty list है. यहाँ पे आपका output empty list है. Just check this. Empty square bracket is there. Oh, Jai sir, Hetvi 50 to 10. Oh, that's strange. 5 एलिमेंट कैसे लागी? गाइज यहाँ पे इसने यहाँ पे -1 to -4 लिखने पे एम्प्टी लिस्ट क्यों दिया? बिकॉज बाय डिफॉल्ट गैप +1 होता है. बाय डिफॉल्ट गैप +1 होता है. आपने प्रोवाइड नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसका इंक्रीमेंट +1, मतलब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा. राइट हैंड साइड पे जाएगा. इज इट ओके? सो आप लोग को गैप लिखना मैंडेटरी है. अब अगर मैं गैप -1 रखूँ, सो दिस 2 आर द सेम. ओके, नाउ अगर मैंने गैप -1 प्रोवाइड किया, नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? यस, एनीवन? एक्सपेक्टेड आउटपुट इज, पहले तो ये समझो कि कितने एलिमेंट प्रिंट होंगे. सो -1. ओके, हम लोग को क्या करना था? एंड लिमिट माइनस स्टार्ट लिमिट. सो व्हाट इज द एंड लिमिट? दैट इज -4. ओके, आप माइनस कंसीडर मत करिए, ठीक है. सो 4 -1, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने माइनस कंसीडर नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने माइनस कंसीडर नहीं किया. सो हाउ मेनी एलिमेंट इट विल डिस्प्ले? 3 एलिमेंट इट विल डिस्प्ले. Okay, but starting value क्या थी? What is the starting value? Sir, that is nothing but a -1. So -1 means it's on a 50. So guys, 50, 40 and 30 it will display. 50, 40 and 30 it will display. अगर आपने gap specify किया है तो, otherwise empty list. So here we have.
Is it clear to everyone? Is it clear to everyone guys? कोई डाउट किसी को? सो गैप इज मैंडेटरी, बाय डिफॉल्ट गैप प्रोवाइड नहीं किया, एक्चुअली तीनों वैल्यू ऑप्शनल थी। स्टार्टिंग वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं करते तो 0, एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो लेंथ ऑफ द लिस्ट, एंड गैप प्रोवाइड नहीं करते, गैप प्रोवाइड नहीं करते देन इट विल बी ए 1। बट थोड़ा सा चेंजेस है, अगर मैं इसकी जगह ऐसा लिखूं प्रिंट LST एंड दो स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी करूं, सो नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, व्हाट इज द एंडिंग वैल्यू, व्हाट इज द गैप, what is the starting value, what is the ending value, what is the gap? So guys, starting value is 0, ending value is a length of LST, and what about the increment or decrement? Sir, it is by default +1, it is by default +1। I hope आपको समझ में आ रहा है। बट गाइज इसकी जगह अगर मैंने ऐसा लिखा तो, मैं अगर गैप प्रोवाइड कर दूं तो, मैंने सिर्फ गैप प्रोवाइड किया, देन व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू, व्हाट अबाउट द स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू? सो गाइज अगर सिर्फ आपने गैप प्रोवाइड किया हुआ है, आपने सिर्फ गैप प्रोवाइड किया हुआ है और स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, देन बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू इज लेंथ ऑफ द लिस्ट, -1। लाइट गया ना बीच में। Okay guys, so I want 50 here, my expected output is 50, 30 and 10, so what I have to write down, क्या लिखना चाहिए? Will you please tell me what I have to write down? Yes, anyone? Milen? My answer? Okay, let us just clear this. I have to write down -1, तो मुझे 10 तक जाना था, तो क्या लिखूँ? मुझे एक्चुअली स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे दोनों को खाली छोड़ देते हैं एंड -2 गैप कर देते हैं। ओके, सो नाउ लेट आई रन दिस। Is it clear? 50, 30 and 10, just check the last one, okay? Now let me consider this list as a 2D array, let us just consider this list as a 2D array। मैं इसको ऐसे 2D array create करके ट्राई करता हूँ कुछ। So now LST is equals to, now list is a heterogeneous type of thing, yeah, we can just write down -1 to -6 and -1, yeah, that's true। Okay, now another thing is मुझे 2D array बनाना था, so let I just create a 2D array, मैं statically create कर रहा हूँ। Okay, so list is a heterogeneous type of thing, so आप list के अंदर list भी set कर सकते हो। Okay, and इसके साथ थोड़ा slicing देखते हैं। So मैं सिर्फ LST print करूँगा तो guys output क्या आएगा? But obvious it will just work like a 2D array, but it's not a 2D array, as we know it's not an array। So now let us just run s3.py, so here we have 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70, 80, 90। But now if I just write out like that, print LST of 0, 0, मैंने ऐसे बोला it's not a 2D array but it works like that। So अगर मैंने ऐसा लिखा print LST of 0, 0, then expected output is 10, so let me run, oh here it is। Okay, it's not 2D array, मैं once again repeat कर रहा हूँ, it is not a 2D array but it seems like a 2D array। So मैं एक और 2-3 एलिमेंट प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 02 means it must be 30, 02 means it must be 30, and here 10 that means it must be 40, ऐसा होना चाहिए। सो लेट मी रन, इट्स वर्किंग 10, 30 and 40। बट नाउ स्टिल मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इट्स नॉट इन 2D array, इट्स नॉट इन 2D array, मैं क्यों ऐसा रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि इट्स नॉट ए 2D array? सो नाउ लेट आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ। Okay, now LST of now can you please tell me colon 1, otherwise colon 2, and here I want to just write down 0। So now what is the expected output of this thing? Because after all it is a list now, then I can just apply slicing। Okay, so what is the expected output of this thing? It supports, उसमें कोई problem नहीं है, it works। Okay, let I just check one thing, मैं यहाँ पे okay आप output बता दीजिए, then after हम कुछ काम करते हैं।
यस एनीवन गाइस, फास्ट थोड़ा सा। या 70 80 90 कैसे मिलियन से 70 80 90? If it's a 2D array, then 70 80 90 is not there. Yes, anyone else? Okay, so guys, it's not a 2D array. How it works? तो एक्चुअली कैसे वर्क कर, पहले ये पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको, या 70 आपने जो रिप्लाई दिया, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्ट एक्चुअली क्या करेगा, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करेगा, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। दैट मीन्स व्हाट, LHT ऑफ, मुझे किससे आप इतना आउटपुट बता सकते हैं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस LHT ऑफ colon colon 2? So guys, expected output of this thing is, it just return 10 20 30 means first element means the first array, and after that दो का gap and it returns another thing 70 80 90. okay, so ऐसा कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। so what is this sir? it's a list of list. let me just run this thing, इतना सा रन करके चेक करते हैं। so it's a s4.py, yeah, here I have. so guys, just check this 10 20 30 and 70 80 90। ये कौन सी चीज दिया मुझे गाइज, मैंने सिर्फ यहाँ पे colon colon 2 लिखा है। नाउ गाइज, कैन यू प्लीज टेल मी, अगर ये लिस्ट के ऊपर मैं 0th इंडेक्स वैल्यू वाला डेटा फेच करूँ तो आउटपुट क्या आएगा? इस लिस्ट के ऊपर मैं 0th इंडेक्स वैल्यू वाला डेटा फेच करूँ तो आउटपुट क्या आएगा? 10 20 30। सो लेट आई डू दैट। मैं सिंपल सा कामकाज करता हूँ। मैं कामकाज क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या बताया, यहाँ पे वो 2D एरे नहीं है। सो यहाँ पे पहले फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट को जस्टिफाई किया जाएगा। सो इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट having only 2 elements 10 20 30 and 70 80 90, and after that इसका जो आंसर आएगा उसके ऊपर 0th इंडेक्स वैल्यू फायर होगी। इट मीन्स यहाँ पे रिटर्न होगा 10 20 30, जस्ट लाइक दैट। आई होप दैट्स क्लियर। सबसे पहली चीज, पहला स्क्वायर ब्रैकेट को जस्टिफाई किया जाएगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट आपको जो भी आंसर दे रहा है उसके ऊपर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट जस्टिफाई होगा। ओके, लेट आई टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट आई जस्ट राइट ऑन प्रिंट LHT ऑफ लेट आई जस्ट राइट ऑन 2। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ दिस? दैट मस्ट बी 70 80 90। ओके, दैट मस्ट बी, बिकॉज गाइस ये 2D एरे, आप बोलो कि अगर ये 2D एरे है, बट स्टिल ये जो 10 20 30 था, इट्स ऑन ए 0th पोजिशन, बिकॉज इट्स ऑन ए फर्स्ट पोजिशन। सो हम लोग उसको 0th इंडेक्स वैल्यू से कंसिडर कर सकते हैं। This is nothing but on a first index. ये first index पे। And what about this 70 to 90? It is on a second index. Okay, so अगर मैं ऐसा लिखूँ print LHT of 2, print LHT of 2, then what is the expected output? It just returns 70 80 90. It will return 70 80 90. Now let me run. So here I have. Is it clear? I hope समझ में आया। ओके, सो आई होप यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है, सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इट्स क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मैं इसके ऊपर स्लाइसिंग देना चाहता हूँ। आई वांट टू जस्ट राइट डाउन colon colon -1 colon -1। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? सो एज वी नो, यहाँ पे 2D एरे को एक्चुअली 1D एरे के हिसाब से, मतलब लिस्ट दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को इंडिविजुअली ही ट्रीट करता है। लिस्ट दोनों स्क्वायर ब्रैकेट को इंडिविजुअली ही ट्रीट करता है। सो पहले स्क्वायर ब्रैकेट का कंसेप्ट क्या था? LHT ऑफ 2, इट रिटर्न्स 70 80 90। इट रिटर्न्स 70 80 90। व्हाट अबाउट द अनदर स्क्वायर ब्रैकेट? अब जो 70 80 90 रिटर्न हुआ, उसके ऊपर ये स्लाइसिंग अप्लाई होगा। सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? यस गाइस, थोड़ा सा फास्ट। यस, वेरी गुड। 90 80 70 must be there. Oh, here it is. Just check the last line. So it is 90 80 70. Is it clear? I hope आप लोग को समझ में आया। So now guys, my requirement is, मुझे ऐसा चाहिए, I want to display 20 50 and 80। मुझे 20 50 और 80 डिस्प्ले करना है। So what to do? I want to access a center element. ओके, सेकंड कॉलम आई वांट टू एक्सेस। देखो मैं इतना ये इस पे फोर्स क्यों कर रहा हूँ, मैंने फंक्शंस को साइड में रख दिया और सिर्फ लिस्ट के स्लाइसिंग पे वर्क कर रहा हूँ। बिकॉज गाइस, अगर आप पाइथन को एज ए डेटा साइंस कंसीडर करवाना चाहते हो, मतलब इन फ्यूचर डेटा साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें आपके पास डेटा अवेलेबल होता है एंड आपको पर्टिकुलर कॉलम पे पर्टिकुलर रो के ऊपर वर्क करना होता है।
सो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन का एक्चुअली लाइक पावर क्या है. ओके, लेट मी कम टू द टॉपिक. मुझे 20, 50 और 80 चाहिए. सो व्हाट टू डू? यस गाइस, मुझे 20, 50 एंड 80 चाहिए. सो व्हाट टू डू गाइस? Can you please tell me what I have to write down? Shreyas sir, Milind sir, Alam sir, no idea. Okay. Okay, अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं colon colon, then what is the expected output? What it returns? ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? पूरा का पूरा लिस्ट. हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या दे रहा है. ये पूरा लिस्ट दे रहा है. अब मुझे हर एक का सेंटर एलिमेंट चाहिए, हर एक का सेंटर एलिमेंट चाहिए. सो मैं कहां से स्टार्ट करूं? डेटा कहां से स्टार्ट करूं? कैन आई राइट डाउन लाइक दैट? मैं ऐसा कुछ लिखूं लाइक माई स्टार्टिंग वैल्यू विल बी 1, ending value will be 2. Can I do one thing? Oh, here I have 40, 50, 60. क्यों? मुझे सबके साथ वर्क करना था. मुझे सबके साथ वर्क करना था. पहले में से एक एलिमेंट चाहिए, सेकंड में से एक एलिमेंट चाहिए, थर्ड में से एक एलिमेंट चाहिए. सो गाइज वी हैव, अगर आपको स्लाइसिंग समझ में नहीं आ रहा, लाइक जैसे मुझे मान लो अभी स्लाइसिंग समझ में नहीं आया, देन आई कैन डू वन थिंग. मैं नॉर्मल भी इसको ट्रीट कर सकता हूँ. सो एक बार नॉर्मली ट्रीट करते हैं, देन आप स्लाइसिंग के साथ वर्क कर सकते हैं. यस, मिलिंद ने एक आंसर दिया था कॉलन कॉलन 2, फुल पोस्ट, फुल लिस्ट. ओके, होल लिस्ट. ओके, ठीक है, आपने वो आंसर दिया था. ठीक है. सो गाइज मैं एक काम करता हूँ, लाइक मुझे पूरा लिस्ट प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूँगा? फॉर आई इन एल एस टी, फॉर आई इन एल एस टी. एंड अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूँ, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? इट विल डिस्प्ले 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ब्ला ब्ला. इंडिविजुअली सबको प्रिंट करेगा. लेट आई जस्ट पुट द डिवाइडर ओवर हियर. ओके, सो पूरा का पूरा लिस्ट मिला. अब मुझे ऐसा बताइए, फर्स्ट लिस्ट में मुझे एक एलिमेंट चाहिए, सेकंड लिस्ट में मुझे एक एलिमेंट चाहिए, थर्ड लिस्ट के अंदर मुझे एक एलिमेंट चाहिए. सो व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? लिस्ट ऑफ 1. सो आई हैव 20, 50, 80. आई हैव 20, 50, 80. नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई द सेम ऑपरेशन ऑन स्लाइसिंग, देन अगर मुझे ये सेम ऑपरेशन स्लाइसिंग पे अप्लाई करना है, देन व्हाट आई हैव टू डू? देन गाइस इट्स अबाउट टू इम्पॉसिबल. व्हाई इट इज अबाउट टू इम्पॉसिबल सर? अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो क्या आउटपुट आएगा? सो गाइज व्हाट विल हैपन, ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली इंडिविजुअली ट्रीट हो रहे हैं. दोनों स्क्वायर ब्रैकेट एक्चुअली इंडिविजुअली ट्रीट हो रहे हैं. आपको अगर अंदर के एलिमेंट्स में इंडिविजुअली वर्क करना है, जैसे यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट चाहिए था, सेकेंड में मुझे एक सिंगल एलिमेंट चाहिए, थर्ड के अंदर मुझे एक सिंगल एलिमेंट चाहिए, देन अगर आप स्लाइसिंग से वर्क करते हो तो पहली चीज़ मुझे तीनों के तीनों लिस्ट चाहिए. फर्स्ट थिंग मुझे तीनों के तीनों लिस्ट चाहिए. तो तीनों लिस्ट कैसे फेच करूँ? तीनों लिस्ट कैसे फेच करें? सॉरी, सो उसके लिए आप क्या बोलोगे? सर जस्ट राइट डाउन एल एस टी स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन कॉलन. देन व्हाट विल हैपन? अगर तीनों की तीनों लिस्ट मुझे रिटर्न हुए, दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब तो सर ऐसा ही है कि एल एस टी लिखा है. इसका मतलब तो ऐसा ही है कि आपने एल एस टी लिखा है. लेट आई जस्ट डू अनडू. मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट अबाउट दिस थिंग? कॉलन कॉलन एंड नो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. दैट मीन्स व्हाट? सर पूरा का पूरा लिस्ट 2D लिस्ट आपको रिटर्न हो जाएगा. उसके ऊपर 1 अप्लाई करने का मतलब क्या? सेकंड लिस्ट मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 40, 50, 60. सो लेट मी चेक. हियर आई हैव 40, 50, 60. दोनों का सेम आउटपुट है. रीजन इज दोनों चीज सेम लिखिए. ठीक है. सो गाइज अगर अंदर के इंडिविजुअली एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है, अंदर के इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर वर्क करना चाहते हो, अगर आप एक ही एलिमेंट चाहिए, जैसे सेकेंड लिस्ट का मुझे 50 चाहिए था, सेकेंड लिस्ट का मुझे 50 चाहिए, देन आई कैन सिंपली राइट डाउन. मुझे अगर सिर्फ 50 चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा? एल एस टी ऑफ 1, 1. तो मुझे वो 50 मिल जाएगा. दैट्स दैट, मुझे वो 50 मिल जाएगा. सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू चेक करिए. बट अगर मुझे हर एक लिस्ट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, हर एक लिस्ट के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए, देन यू हैव टू अप्लाई सम ऑपरेशन. तो हर एक लिस्ट को इंडिविजुअली ट्रीट करना पड़ेगा. बट व्हाट स्लाइसिंग विन, सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्लाइसिंग? अगर आपने आउटर वाला स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी अगर आपने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे, देन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट इंडिविजुअली ट्रीट होंगे. ओके, आप स्लाइसिंग यूज करिए या डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू. जैसे कि
मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू यूज़ किया, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता 1 1, तो पहले इस LST ऑफ 1 का मतलब सेंटर लिस्ट। सो इन शॉर्ट आई वांट टू जस्ट से इफ यू आर यूजिंग ए मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स then all the square brackets will be individually treated. Okay, so be careful with this. Okay, so अगर हम लोग 20 50 और 80 लेना चाहते हैं, so that's not directly possible. That's not directly possible because we have to fetch all this list individually. After that we have to apply some operation. Is it clear to everyone? I hope that's quite clear. Sorry, that's clear actually. So हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो गाइज अप टू दिस हम लोगों ने क्या काम काज किया, लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट से डेटा फेच किया, मतलब इसको बोलते हैं रिट्राइवल ऑपरेशन, इसको बोला जाता है रिट्राइवल ऑपरेशन। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज सर आई वांट टू इंसर्ट सम डेटा इन ए लिस्ट, मुझे लिस्ट के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है। सो लेट वी डू, कैसे इंसर्ट करें। सो लेट आई जस्ट क्रिएट अ लिस्ट विथ 5 एलिमेंट्स, ओके, एंड आई वांट टू इंसर्ट सम डेटा। जैसे मुझे लास्ट में 60 इंसर्ट करना है, then guys we have a append function, we have a append function जो लास्ट में डेटा ऐड कर देगा। मतलब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं तो अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, अभी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा 10 to 60। Now let me run this. Okay, but if someone says sir I want to insert 15 in between 10 and 20, so guys for that you have an insert function। जैसे मैंने इससे पहले लिस्ट आउट किया था कुछ, here I have to insert the data, I have append and insert, okay, but मुझे इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना था, still I do not want to focus on that, but अगर मुझे अभी 15 इंसर्ट करना है, but कहाँ पे इंसर्ट करना है, before 20, so I want to insert the data on a first index value, so I have a actually insert function जो index value specific data insert करेगा। so I have 10 then 15 then 20 and onwards। and अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है then you can do one thing guys, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, help in the bracket lst.insert, so that we just check। so कुछ मैसेज है मेरे पास, okay, so insert the object before the index in the sense अगर आपने यहाँ पे index value 5 लिखा तो 5 से पहले मतलब 4 और 5 के बीच में रख देगा। ओके, सो दैट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपको अपेंड का हेल्प चाहिए देन यू कैन जस्ट राइट डाउन lst.append, मतलब गूगल करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बट एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना था सर, दिस इज नॉट माई रिक्वायरमेंट। ओके, मैं इन दोनों को कमेंट कर रहा हूँ, लेट आई जस्ट यूज द मल्टीपल कमेंट लाइन्स। दिस इज नॉट ए मल्टीपल कमेंट बट अभी सब लोग उसको एज ए मल्टीपल कमेंट यूज करते हैं, बट लेट मी फॉरगेट दैट राइट नाउ, इसको इग्नोर करते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। गाइज आई वांट टू इंसर्ट ए लिस्ट, मेरे पास 4 एलिमेंट है, ओके, मेरे पास 4 एलिमेंट है लाइक 22 25 एंड 27, अदरवाइज 3 एलिमेंट्स आई हो, मुझे इस 3 एलिमेंट को 20 और 30 के बीच में इंसर्ट करना है। सो कैन आई, सो लेट आई जस्ट यूज lst.insert 30 का पोजीशन क्या है, ओए प्लीज कंसीडर विद दिस, इस 15 को कंसीडर करना मीन्स राइट नाउ आफ्टर दिस आपका लिस्ट क्या था, माई लिस्ट इज 10 15 20 30 50 40 50 and 60। okay, so I want to insert over here इससे पहले, so what is the index value of 30, what is the index value of 30, इसका इंडेक्स वैल्यू क्या है गाइस, विशाल आपने क्या आंसर दिया सर, ओके, सो यहाँ पे मुझे 30 का इंडेक्स वैल्यू क्या मिलेगा, 10 का इंडेक्स वैल्यू 0, 15 on 1, 20 on 2, 30 and 3, so let I just write down 3 and something and let I just print lst, so run करें। oh, ये तो पूरा लिस्ट बन रहा है, मतलब ये तो पूरा एज ए सिंगल इंडेक्स वैल्यू कंसीडर होगा, मुझे ऐसे इंडेक्स वैल्यू कंसीडर नहीं करना था, मुझे ऐसे डेटा इंसर्ट नहीं करना था। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, माय रिक्वायरमेंट इज मुझे तीनों को इंडिविजुअली इंसर्ट करना था, मतलब 22 मस्ट बी ऑन ए पोजीशन नंबर 3, 25 मस्ट बी ऑन ए पोजीशन नंबर 4, 27 मस्ट बी ऑन पोजीशन नंबर 5। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूँ प्रिंट lst ऑफ 3, प्रिंट lst ऑफ 4, तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए 22 25 27। लेट आई चेक, तो इट्स नॉट लाइक दैट, यहाँ तो लास्ट में तो कुछ अलग बंदा आ रहा है। सो इन शॉर्ट व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, ये जो मेरे पास 3 एलिमेंट थे
तीनों को इंडिविजुअली आई वांट टू इंसर्ट, इन तीनों को सेपरेटली मुझे इंसर्ट करना था. सो व्हाट टू डू गाइस, ये मुझे क्या करना चाहिए अभी. सो गाइस अब इसके लिए भी अपने पास एक ही भगवान है, दैट इज स्लाइसिंग. ओके, सो लेट आई जस्ट कॉपी दिस. मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ and I want to insert this much of data. I want to insert this much of data after 20. So I want to insert this. Okay, so LST of something equals to something. कहाँ पे insert करना चाहते हो सर? 20 के बाद. What is the index value of 20? Sir, it is 1. So just write down 1 colon 1. Oh, what is this? 1 colon 1 means what? Sir, slicing में difference निकालिए. 1 minus 1 that means 0. ओके अभी समझते हैं जीरो का यहाँ पे मीनिंग क्या है. बट बिफोर दैट लेट आई जस्ट प्रिंट द लिस्ट. ओके, सो लेट आई जस्ट रन दिस एस डॉट. ओह इट्स वर्किंग, जस्ट चेक दैट. सर बट ये तो 20 से पहले आ गया. सो गाइज बी केयरफुल. वहाँ पे इंडेक्स वैल्यू से पहले कहाँ पे, अपने इंसर्ट वाले में, और यहाँ पे एग्जैक्ट इंडेक्स वैल्यू के ऊपर. सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग, 2 ले लेते हैं. नाउ इट्स वर्किंग. Now it works fine. 22, 25, 27. Now it works fine. So if you have a bulk of data, and you want to insert all this data as an individual element, okay, then slicing is useful. But sir, can I do one thing? Okay, so that is nothing but an insertion. So sir, can I do one thing? मैं इसकी जगह ऐसा लग सकता हूँ. Let I just say this program. मैं confuse नहीं करना चाहता. So मैं ऐसा कुछ लिखूँ लाइक 2 to 5. So what is the meaning of 2 to 5? सर 5 minus 2 मतलब 3 elements. So 2 to 5 मतलब 2 मतलब that's 30. So 30 to 50. Okay, so guys 30 to 50 की जगह इतने elements override हो जाएंगे. It's something like that. Let me check. हम लोग का कुछ जान ही रहा. Let me check. Oh yes, that's it. So if you want to overwrite an element, if you want to update your list, then also slicing is a useful. Okay, but sir, now can I do one thing? Let I just write down s8.py. I hope कि स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही है. ओके, सो मुझे कुछ डेटा डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है. अदरवाइज आई वांट टू रिमूव द 2 to 4. 2 to 4 मतलब आई वांट टू रिमूव दिस 30 and 40. मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, बट आई वांट टू जस्ट डिलीट दिस. सो गाइस डू वन थिंग, एम्प्टी लिस्ट पास कर दीजिए. Please pass the empty list. Now let me run. Okay, so, sorry, it was S8. Sorry, that was my mistake. So right now we have 10, 20 and 50. I hope that's clear. So slicing कितना useful है, I hope आप समझ सकते हो guys. Okay, and so that's that guys. आज मतलब मैं आगे कुछ नहीं ले रहा. अभी फीडबैक वगैरह आप फिलअप कर दीजिएगा. And if any one of you are interested in Python or machine learning or cyber security, then हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो. एंड आफ्टर 2 वीक हम लोग मशीन लर्निंग पे एक वेबिनार रखने वाले हैं. ओके, आफ्टर 2 वीक्स. बट फॉर दैट वी रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड एटसेट्रा थिंग. तो वो चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा. आई विल डायरेक्टली स्टार्ट द मशीन लर्निंग मॉडल. ओके, सो आफ्टर 2 वीक्स मतलब राइट नाउ इट्स सेकेंड वीक मीन्स अप्रोक्स. ओके, मैं आपको एक्चुअली मेल फॉरवर्ड कर दूंगा, सो प्लीज़ चेक करते रहिए. अदरवाइज टेलीग्राम पे भी अनाउंस कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स हम लोग ये जितने भी प्रोग्राम्स है वो आपको लाइक ड्राइव पे अपलोड करके लिंक भी फॉरवर्ड कर देंगे. सो आज के सेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो गाइस. आप ये सेम डिलीशन, अपडेशन, इंसर्शन सब कुछ जो स्लाइसिंग के साथ किया वो 2D एरे के साथ भी वर्क करा सकते हो. मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट के साथ भी आप वर्क करा सकते हो. कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो गाइस आप इन फ्यूचर मेल भी कर सकते हैं. इट्स नॉट ए बिग डील. टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं. ओके, और अपडेट्स के लिए आप फेसबुक या मतलब लाइक ट्विटर वगैरह पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, इंस्टा वगैरह पे भी. टेलीग्राम लिंक सर इसके डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल होगी. आप ये वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको टेलीग्राम, फेसबुक सब कुछ मिल जाएगा. इज इट डन गाइस? शुड आई कंप्लीट?